Hello guys, welcome back to On Time Notes, and in this video we are going to see Pentium 4 NetBurst microarchitecture. So Pentium 4 was released in 2000, made by Intel, used a new design called NetBurst microarchitecture. This allowed it to run at faster speed with better performance, and it had 20-stage deep pipeline. It introduced the LGA 775 socket, and Pentium 4 supported DDR2, that is double data rate 2 memory. It was known for high clock speeds. So इस वीडियो में हम लोग Pentium 4 नेटबर्स्ट माइक्रो आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे. सो जो Pentium 4 है उसको 2000 में रिलीज़ किया गया था, जो कि इंटेल ने बनाया था. एंड ये एक न्यू डिज़ाइन को यूज़ करके बनाया था, जो कि है नेटबर्स्ट माइक्रो आर्किटेक्चर. एंड ये अलाउ करता था कि फास्टर स्पीड से रन करे एंड बेटर परफॉर्मेंस दे. तो इसमें है 20 स्टेजेस डीप पाइपलाइन है, 20 स्टेज डीप पाइपलाइन, एंड जो कि LGA 775 सॉकेट को इंट्रोड्यूस किया था. इसमें Pentium 4 जो है वो DDR2 मेमोरी को सपोर्ट करता है, दैट इज़ डबल डेटा रेट 2, और इसको हाई क्लॉक स्पीड्स भी बोला जाता था. So now we'll see the block diagram of Pentium 4. It totally consists of 4 parts: front-end module, out-of-order engine, then integer and floating point executional units. Last we have is memory subsystem. So front-end module consists of BTB, that is or branch prediction, fetch, decode, trace, cache. Then out-of-order, it consists of out-of-order execution logic or retirement. And third we have is integer and floating point executional units. It sees level 1 data cache and executional unit. Then last we have is memory subsystem. It shows level 2 cache, bus unit, and system bus. Going to see each of them further. We are going to see them one by one in detail. So ये है Pentium 4 का ब्लॉक डायग्राम. इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं: फ्रंट एंड मॉड्यूल, आउट ऑफ ऑर्डर इंजन, इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट एग्जीक्यूशनल यूनिट्स, एंड मेमोरी सब सिस्टम. और इन सब पार्ट्स को हम लोग आगे डिटेल्स में देखेंगे. तो द फर्स्ट पार्ट वी हैव इज फ्रंट एंड मॉड्यूल. इट स्टार्ट्स द वर्क एंड fetch, decode. The CPU fetches instruction from memory and decodes them into simple steps, that is called micro ops. Then we have trace cache. It stores decoded instructions so the CPU doesn't have to decode them again, and this saves time. And also we have here branch prediction. The CPU guesses what will happen next in your program, like loops or if else, and if it guesses right, it doesn't have to wait. So जो पहला पार्ट है वो है फ्रंट एंड मॉड्यूल. तो ये क्या करता है, वर्क को यहाँ से वर्क अपना स्टार्ट होता है. फेच और डिकोड, इसमें क्या होता है कि CPU जो है वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी या फिर इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से फेच करता है या फिर उसको डिकोड करता है सिंपल स्टेप्स में. उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑप्स. एंड नेक्स्ट वी हैव इज दूसरा है ट्रेस कैश. तो इसमें क्या होता है कि जो भी डिकोडेड इंस्ट्रक्शंस है वो सब स्टोर किए रहते हैं. सो CPU को उनको बार बार डिकोड नहीं करना पड़ता, जो कि अपना टाइम सेव करता है. एंड देन है ब्रांच प्रेडिक्शन. तो इसमें क्या होता है कि CPU गेस करता है कि अभी क्या होगा प्रोग्राम में नेक्स्ट, जैसे कि अभी लूप्स और इफ एल्स. एंड अगर उसने राइट गेस किया तो उसको वेट करना नहीं पड़ेगा. सेकेंड पार्ट वी हैव इज आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन. मेक्स इट स्मार्टर एंड फास्टर. So out of order execution logic, the CPU does instructions in any order to save time, not just one by one, and it picks the ones that are ready first. Retirement, even though they were done out of order, the CPU puts them back in the correct order before finishing, and this makes sure everything works as expected. Then branch history update, it learns from past guesses to get better and faster in future predictions. आउट ऑफ ऑर्डर इंजन में क्या होता है कि प्रोसेसर को स्मार्ट एंड फास्ट करता है. आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन लॉजिक में क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं
CPU उनको कोई भी ऑर्डर में उनको एग्जीक्यूट करता है, ना कि जस्ट वन बाय वन। एंड पहले से ही रेडी है, सिर्फ उन्हीं को पहले एग्जीक्यूशन के लिए CPU लेता है। एंड देन हमारे पास है रिटायरमेंट। जब हमारा आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, भले ही आउट ऑफ ऑर्डर में वो कैसे भी ऑर्डर में लिए थे इंस्ट्रक्शंस, लेकिन जब पूरा वो कंप्लीट होता है तब उनको CPU उनको करेक्ट ऑर्डर में डाल देता है बिफोर फिनिशिंग, मतलब फिनिश होने से पहले उनको करेक्ट ऑर्डर में वो पुट कर देता है। एंड इसके वजह से जो भी अपना काम है वो सब एक्सपेक्टेडली वर्क होता है। और हमारे पास है फिर ब्रांच हिस्ट्री अपडेट। इसमें क्या होता है कि पास्ट में जो गेसेस किए थे उससे वो लर्न करता है, सो फ्यूचर में जो प्रेडिक्शंस है वो बेटर एंड फास्टर हो। देन थर्ड पार्ट वी हैव इज एग्जीक्यूशन यूनिट। इट डज द रियल वर्क एंड हियर वी हैव लेवल 1 डेटा कैश, a small memory inside the CPU that keeps important data close for quick use. And execution unit, that is integer and floating point. These are like CPU's calculator, they do the math and logic work. So जो थर्ड पार्ट है अपना, ये जो एग्जीक्यूशन यूनिट है इसमें सारा असली काम है। सो पहला है कि लेवल 1 डेटा कैश। इसमें क्या होता है कि CPU एक स्मॉल मेमोरी, CPU में एक स्मॉल मेमोरी एकदम इम्पोर्टेंट डेटा को, जो एकदम इम्पोर्टेंट डेटा को रखता है, ताकि हम क्विकली अगर कोई डेटा हमें चाहिए तो हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव इज़ एग्जीक्यूशन यूनिट, जो कि इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट। सो इसमें ये है जैसे कि CPU का एक कैलकुलेटर हो वैसे काम करता है। एंड जितना भी लॉजिक या फिर मैथमेटिकल वर्क है ये सब एग्जीक्यूशनल यूनिट में परफॉर्म होता है। देन फोर्थ पार्ट वी हैव इज़ मेमोरी सब सिस्टम। इट हैंडल्स डेटा मूवमेंट। सो इसमें है लेवल 2 कैश, अ बिगर मेमोरी दैट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस यूज रिसेंटली। इट इज़ स्लोअर दैन L1 बट स्टिल फास्टर दैन मेन मेमोरी, दैट इज़ RAM. Then we have is bus unit, sends and receive data to find, sends and receives data to and from the CPU. And bus system, the main connection between the CPU and other parts of the computer, that is RAM, hard drive, etc. So जो हमारा लास्ट पार्ट है वो है मेमोरी सब सिस्टम। जो भी डेटा के मूवमेंट्स है वो सब हैंडल होते हैं मेमोरी सब सिस्टम में। और इसमें है लेवल 2 कैश, बिगर मेमोरी है जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस जो रिसेंटली यूज़ किए हैं उनको स्टोर करता है। ये L1 कैश से स्लोअर है, लेकिन मेन मेमोरी दैट इज़ रैम से फास्टर है। बस यूनिट है, वो क्या करता है, डेटा को रिसीव एंड सेंड करता है, मतलब कोई भी डिवाइस से CPU एंड CPU से डिवाइस तक। लास्ट है सिस्टम बस, जो कि है मेन कनेक्शन बिटवीन CPU एंड बाकी के अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, दैट जैसे कि रैम, हार्ड ड्राइव एक्सेट्रा। So whatever we have seen earlier, we can see this, we can say this is the simpler flow. That is, first the instructions comes in, then it gets decoded, then it guesses the path or branch, then it is stored in a trace cache, then again it is reordered, then executed, again put back in order, then results are saved and data is sent out. सो अभी हम लोग ने जो भी देखा सारा प्रोसेस, उसको हम लोग ऐसे एक सिंपल फ्लो की तरह भी देख सकते हैं। जैसे कि अभी पहले इंस्ट्रक्शन आया, फिर उसको डिकोड करेंगे, डिकोड करने के बाद पाथ गेस करेंगे, फिर पाथ जब गेस होगा तो उसको ट्रेस कैश में स्टोर करेंगे, फिर उसको रीऑर्डर करेंगे, रीऑर्डर करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट होने के बाद वो फिर से जो ऑर्डर में था उधर जाएगा, एंड देन जो भी रिजल्ट है वो सेव होगा एंड डेटा जो है उसको डेटा सेंड आउट होगा। So this was it for the Pentium 4 NetBus micro architecture, and I hope you found this video helpful, and if you did guys, please don't forget to like, share and subscribe to the channel, and thank you for watching till here.